स्वागत है। मैं हूँ सिमरन कौर मुंडी और आज हम आ पहुँचे हैं मुंबई के महिंद्रा हॉकी स्टेडियम में और आज का हमारा मैच है बिटवीन होम टीम मुंबई मैजिशियंस एंड रांची राइनोस के बीच। मेरे साथ मौजूद है हमारी ही लीग के दो एक्सपर्ट्स, फॉर्मर इंडिया टीम कैप्टन वीरेंद्र स्कीना एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक फ्लिकर्स जुगराज सिंह। Always a pleasure to have you guys. Thank you. So जुगराज आप बताइए, my favorite part of the show, the money. कितने पैसे मिल रहे हैं? सिमरन बहुत सारे पैसे हैं। अगर हम बात करें टोटल प्राइज मनी की तो यह है 5 करोड़ 40 लाख रुपए। वहीं विनर टीम के लिए है 2 करोड़ 50 लाख रुपए और रनर अप टीम जो है उसको मिलने वाले हैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए। अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो उसको मिलने वाले हैं 25 लाख रुपए। वहीं अगर यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है उसको मिलने वाले हैं 20 लाख रुपए। और अगर बात करें जो टीम सबसे ज़्यादा गोल करेगी हीरो हॉकी इंडिया लीग में उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो भाई बहुत बड़ी प्राइज मनी है और मैंने तो अपनी हॉकी स्टिक भगवा ली और मैं तो मैदान में आने वाला हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। ओके वीरेंद्र, आप मुझे बताइए कि आज हमारा लास्ट मैच है इस लीग फेज का। सो आज की डेट में हमारा पॉइंट्स टेबल कैसा लग रहा है? Yes, Simran, it is the last league match of the Hero Hockey India League. It's been a tremendously exciting tournament so far, and we know our 4 semi-finalists. The top 4 teams on your points table, the Delhi Wave Riders, the Ranchi Rhinos, the UP Wizards and Punjab Warriors have sealed their semi-final spots. In fact, the UP Wizards have the distinction of being the first team in the Hero Hockey India League to hand the Delhi Wave Riders a defeat. Mumbai Magicians only play for pride tonight. जैसे कि आपने कहा मुंबई प्लेज ओनली फॉर प्राइड टुनाइट, बट आई एम श्योर वो आज भी अपनी बेस्ट टीम फॉरवर्ड लेके आएंगे। तो कैसी लग रही है आज हमें मैजिशियंस? Absolutely, Simran. It's been a disappointing campaign for the Mumbai Magicians so far, but let's take a look at the team that coach Rick Charlesworth has lined up today. In the first 11, you have goalkeeper Srijesh in goal. You have Joel Callan in defense, who has been outstanding. Matthew Swan has been the driver in the midfield for them. They need Glenn Turner to score goals in the forward line. If you take a look at the substitutes, Faisal Sari of Malaysia really has to prove himself in the forward line. Suresh Topo is one of the exciting young talents to watch out for Indian hockey in the future. If you take a look at the team formation, coach Rick Charlesworth has lined up a 3-3-4 formation. This Mumbai Magicians squad really needs to figure out how to plug the loopholes in that defense. They have been leaking goals left, right and center. Sandeep Singh is the top goal scorer in the Hero Hockey India League. He has scored 11 drag flick goals for the Mumbai Magicians. He has scored against almost all the teams. What has proved to be a real dangerous weapon for this Magicians is his flicks low down to the bottom of the goal. Almost all his flicks have hit the board level, and goalkeepers across the hockey league, all 5 teams have found it very tough to hold those low, strong drag flicks. Sandeep is going to be a key weapon for today, and the Magicians need him to fire tonight. Well, जुगराज, ऐसा लग रहा है जैसे आज रांची का प्रैक्टिस मैच है ना? बिल्कुल सिमरन, आज का मैच वो शायद कोच क्लार्क जो है वो एक्सपेरिमेंटल मैच ले रहे हैं क्योंकि आज उन्होंने 6 प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं उनको रेस्ट दिया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं लाइनअप के ऊपर। वहीं गोल पोस्ट में है गोलकीपर कॉटेस, डीप डिफेंडर्स में हामिद रोहित दास, मिडफील्ड की बात करें तो कोथाजीत एंड मनप्रीत इज देयर। और वहीं अगर बात करें फॉरवर्ड लाइन की तो आज जो कोच है उन्होंने फ्लोरेंस आवर्स को रखा है जो कि कप्तान है टीम के। और सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो परविंदर है, प्रदीप है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेंच है आज रांची राइनोस के पास। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन जो है वो 3-2-3-2 शुरू से फेवरेट फॉर्मेशन रही है कोच क्लार्क की। और की प्लेयर आज जो जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी वो रहेंगे कप्तान आइवर्स, जो कि हॉलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक 2 बार ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अपनी टीम को हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। आपने अभी बात की थी फ्लोरेंस एवर्स की। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने भी उनसे बात की थी। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। We have a lot of fun. I'm happy that I play for Ranchi. I think the people in Ranchi are really friendly to us. The team is really good. The international players, I didn't know that good, but they are friends already. And the Indian players, we have a lot of fun and the results are good. Ever since I visited India with my team, with the Dutch team, I was always happy to be here. It's a crazy country in a positive way. I was here already 5 weeks before the tournament doing a yoga teacher training, so I'm a yoga teacher now. And in the coming years I want to discover more of India. I like it a lot.
Yes, my favorite sentence is, because I like people having fun, I always ask people, Kwaji Kabi Has Lea Karo. वेलकम बैक टू हीरो हॉकी इंडिया लीग 2013। मुंबई में हमेशा की तरह आज बहुत ही अमेजिंग क्राउड आया है। मुंबई को हमेशा अपना होम टीम सपोर्ट करने आती है बहुत सारे लोग। अच्छा, मेरे साथ वीरेंद्र स्किनर तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही, अब मेरे साथ ऑल्सो मौजूद है रिक चार्ल्सवर्थ, हु इज द कोच ऑफ मुंबई मैजिशियंस, अ लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन कोच। थैंक यू सर, इट्स अमेजिंग टू हैव यू हियर। थैंक यू। Rick, thanks for coming and talking to us. I'm a Mumbai lad, Rick. It's been a very disappointing performance from the Magicians in this inaugural Hero Hockey India League. What really happened? I think you just have to say we didn't play well enough. But right from the beginning, I think we didn't do so well out of the auction. Then we lost 5 players from our international players in the period just before the start of the league. We started the league without them. And we never really recovered, I think, and we just didn't really play well enough. We didn't finish at the front, and we were a bit leaky at the back. Rick, I think you got adequate replacements as well. You got 3 Australian players and a New Zealander who you know really well personally. So, in that point of view, there were replacements. Yeah, as well. we got replacements, but that was 2 weeks after the thing had started, and we didn't have the preparation. And then I don't think those players were the same quality as the ones we lost. And I think in the auction initially we didn't do as well as we might. We spent less than every other franchise. We had money over, so it's not surprising. Yeah. Coach, also the Mumbai team experienced one of the paradoxes of the tournament. You all are the team which has the highest individual goal scorer, but also you all were the team that conceded the highest number of goals in the defense. Yeah, well, as I said, I think our goalkeeping hasn't been good. That's been disappointing. And I think that we've won more corners than any other team, and Sandeep is a world-class corner taker, so he's done very well in that area. Yeah. Coach, do you think the Hero Hockey India League is a good breeding ground for young Indian hockey players and any youngsters who have particularly impressed you? Time will tell. I think that it's a good environment for them to be in, but it's not international hockey. There are too many holes in all of the teams. But time will tell. Young Mandeep from this team has been outstanding in my view. He's played very well. I was told he was a little bit too young, but I think he's surprised a lot of people, and he certainly has been the standout young player that I've seen here. Thank you, Coach, and good luck for your final match today. Thank you very much. Thanks. Good luck. Last game of this league phase. I am sure all of you are very excited. I am super excited. Let's go and see what the match has in store for us. To you commentators. धन्यवाद सिमरन। हम तैयार हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग के बिल्कुल अंतिम लीग मुकाबले के लिए। महिंद्रा स्टेडियम मुंबई में आज मेजबान टीम डाबर मुंबई मैजिशियंस का सामना करने वाली है रांची राइनोज, जो पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, जबकि डाबर मुंबई मैजिशियंस अपने अंतिम मैच में एक अदद जीत की तलाश के लिए खेल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील तनेजा और मेरे साथ मौजूद है भारत के पूर्व गोलकीपर और पूर्व कोच मीर रंजन नेगी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेगी साहब। मुंबई मैजिशियंस पिछले 11 मुकाबलों में सिर्फ एक ही मुकाबला जीते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो अपने गर्व के लिए खेलेंगे, प्राइड के लिए खेलेंगे, लेकिन 11 में से सिर्फ एक मैच जीतने वाली टीम क्या वाकई में गर्व के लिए खेल सकती है जो पहले ही गवा चुकी है? थैंक यू सुनील। मुंबई की टीम के लिए ये कंपटीशन जो है ये एक खराब सपने की तरह रहा। ऐसा सपना जिसमें सब कुछ धुंधला सा था, रोशनी फीकी थी। अब ये बाद में ये लोग सोचेंगे कि वहाँ पर कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन आज तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए खेलेंगे। चलिए देखते हैं कि अंतिम मुकाबले में डाबर मुंबई मैजिशियंस की टीम कितना आत्मसम्मान बचा पाती है, क्योंकि पिछले 11 मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। और अगर रांची राइनोज की बात करें, रांची राइनोज और मुंबई मैजिशियंस के बीच में होने वाला ये तीसरा मुकाबला है। हम सब जानते हैं कि हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 3-3 मुकाबले खेलती है और पिछले दोनों मुकाबले रांची राइनोज ने जीते हैं। ये दोनों मुकाबले रांची में हुए थे। पहले मैच में रांची
2-1 से जीते, फिर 3-1 से जीते, तो क्या आज 4-1 से जीतने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि रांची राइनोज क्योंकि पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपने बहुत सारे प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है। जैसा आपने टीम लिस्ट में देखा, मनदीप सिंह नहीं है जो इस टीम के सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं, उसमें उनके मुख्य कप्तान मॉरिस क्वेस्टे नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मुंबई की टीम एक आक्रमण बनाना चाहती है, ग्लेन टर्नर है गेंद के साथ, लेकिन जहां गेंद दी वहां कोई साथी मौजूद नहीं। तो रांची की टीम नेगी जी आज अपने सितारे खिलाड़ियों के बिना उतरी है। सेमीफाइनल में भले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन सेमीफाइनल से तुरंत एक मैच पहले क्या थोड़ा सा अपने मोमेंटम को कम करने वाली बात नहीं होगी अपनी द्वितीय दर्जे की टीम उतारना? सुनील, इनके जो दूसरे कोच हैं बलजीत सिंह सैनी, वो जूनियर इंडिया हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं। वो सारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से पहचानते हैं और उनके ऊपर उनको बहुत सारा भरोसा भी है। तो आज एक ट्रायल है उनके लिए, एक तरह से उनका इम्तिहान है, इसीलिए जूनियर प्लेयर्स को वो लोग चांस दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ में पूरी टीम ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, उसी आत्मविश्वास के साथ में ये आज भी परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे दर्शक देख पाए, संदीप सिंह 25 गज की लाइन के पास आ चुके हैं और उनके खिलाड़ी गेंद को लेकर डी के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या मुंबई की टीम पहला हमला बोलने में कामयाब होगी? जी नहीं, दबाव जरूर रहेगा। बाएं छोर से एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है अब डाबर मुंबई मैजिशियंस को। हम बात कर रहे थे किस प्रकार से रांची की टीम ने युवा खिलाड़ी उतारे हैं। गोल में हालांकि अभी भी फ्रांसिस्को कॉर्टेस हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई दबाव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास एक रिजर्व गोलकीपर भी हैं, सुशांत तिर्की, जो बेंच पर हैं, और पूर्व गोलकीपर नेगी साहब बेहतर बता सकते हैं कि इस मैच में सुशांत तिर्की को खिलाना सही था या फ्रांसिस्को कॉर्टेस को? जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आत्मविश्वास जो है या आत्मसम्मान जो है उसकी भी बात है। तो कहीं ना कहीं कोच ने सोचा कि इसका लास्ट मैच है, वो जीत के बाहर आना चाहती है। रांची की टीम का पहला लगाया गया, डिफ्लेक्शन संभव नहीं हो पाई। मुंबई के तमाम हमलों के बीच में रांची को ये सुनहरा मौका मिला था। ये देखें, ये देखिए, स्टैनली मिल्स ने क्रॉस मारा, रिवर्स हिट था, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत आसान सा मौका प्रदीप ने छोड़ा वहां पर। और अगर इस प्रकार के डिफ्लेक्शंस की बात करें, इनके मनदीप सिंह ने बहुत सारे गोल ऐसे डिफ्लेक्शन पर किए हैं। मनदीप सिंह आज टीम में शामिल नहीं है। मनदीप सिंह, मॉरिस क्वेस्टे और इनके साथ साथ ऑस्टिन स्मिथ, जस्टिन रीड-रॉस, जो मुख्य खिलाड़ी हैं रांची के, वो पहले ही रांची पहुंच चुके हैं। यानी कि उन खिलाड़ियों को कोच यहां लेकर भी नहीं आए हैं। तो नेगी जी, पता चलता है कि कितने कीमती हैं ये खिलाड़ी रांची के लिए। मनदीप का जहां तक सवाल है सुनील, उन्होंने इस कंपटीशन में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से ही वाज द फाइंड ऑफ द टूर। और जहां पर प्रदीप था वहां अगर मनदीप होते तो 1001% वो गोल हो जाता था। आपने 1000 नहीं 1001% कहा, तो शगुन डाल दिया 1 रुपए का। यहाँ मौका है मुंबई के पास, उनके गोल का शगुन अभी तक निकला नहीं है। और नेगी जी, ऐसा अक्सर देखने में आता नहीं कि मैच की शुरुआत में 10 के 10 मुंबई कर आगे जाकर हमला करें। ग्लेन टर्नर ने डायरेक्ट गोल में ट्राई लिया था, मैथ्यू बुटेरिनी वहां खड़े हुए थे, और एक अगर थोड़ा सा क्रॉस देते तो शायद ये गोल हो सकता था। देखते हैं रांची की टीम कोई विशेष खलबली मचा पाएगी या नहीं। फिलहाल उनका अटैक तो थम जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों ने देखा कि दिल्ली वेव राइडर्स की टीम को इस प्रतियोगिता में पहली हार मिली है। यूपी विजर्ड्स ने उनको 4-1 से हराया, और वो भी उन्हीं के होम ग्राउंड दिल्ली में, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब स्कोर तालिका में यूपी की टीम नंबर 3 पर आ चुकी है, और सेमीफाइनल में यूपी का मुकाबला अब रांची राइनोज के साथ होने वाला है। और रांची की टीम के लिए मौका है, डिफेंस एकदम मुस्तैद था, मौके अभी भी मिलेंगे। डी के अंदर जाने में पूरी तरह सफलता मिली है रांची की टीम को, लेकिन गेंद के साथ कोई प्रयास करने का मौका नहीं मिला। ये है डॉक्टर रिक चार्ल्सवर्थ और ये है ग्रेग क्लार्क, दोनों टीम्स के कोच हैं। रिक चार्ल्सवर्थ मुंबई मैजिशियंस के कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी कोच रह चुके हैं, उनकी महिला टीम के भी कोच रह चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। और अगर हॉकी खिलाड़ियों और मेंबर पार्लियामेंट्स की बात करें तो भारत में असलम शेर खान साहब का नाम याद आता है, जो भारत सरकार में मंत्री भी रहे। असलम शेर खान 1975 विश्व कप की जो विनिंग टीम थी उसमें फुल बैक खेला करते थे। सेमीफाइनल में अपने ताबीज को चूमकर जिस तरीके से उन्होंने गोल मारा,
वो आज तक हॉकी प्रेमी जनता जो है वो याद करती है। जनता याद करेगी मुंबई मैजिशियंस का ये सफर। इतने महान कोच नेगी जी उनके साथ रहे। बड़ा दुख होता है कि संदीप सिंह उनकी टीम के खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा गोल किए, 11 गोल किए इस प्रतियोगिता में, दुनिया के महानतम कोचेज में से एक रिक चार्ल्सवर्थ उनके साथ हैं, लेकिन प्रदर्शन टाई टाई फिस, क्या कमी रही? सुनील, रिक चार्ल्सवर्थ की इस टूर्नामेंट में कोई भी नीति जो है वो काम नहीं आई। उनका हर दांव जो था वो उल्टा पड़ा एक्चुअली। यहाँ देखते हैं रांची का ये दाव सीधा पड़ पाता है नहीं, नीचे तक गेंद पहुंची और तुरंत अंपायर ने विसल दूसरी टीम के लिए बजाई। अंपायर है रघु प्रसाद जो बेंगलोर से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर हैं, FIH ग्रेड 1 अंपायर हैं ये देखिए तरनदीप ने पेनाल्टी कॉर्नर की मांग करी थी। और अगर पेनल्टी कॉर्नर मिलता तो उनके पास एशले जैक्सन टीम में हैं। एशले जैक्सन एक ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनको इस मैच में खिलाया गया है। मॉरिस क्वेस्टे या रीड रॉस या मनदीप की तरह उनको आराम नहीं मिला, तो मॉरिस क्वेस्टे की गैर हाजिरी में आज फ्लोरिस एवर्स टीम के कप्तान हैं, रांची टीम के, और डच टीम के कप्तान भी हैं। और ये कप्तानों की टीम है। इस टीम में जर्मनी के कप्तान मॉरिस क्वेस्टे हैं, हॉलैंड के कप्तान फ्लोरिस एवर्स हैं, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैं ऑस्टिन स्मिथ, और एशले जैक्सन इंग्लैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं। और सेमीफाइनल में इनका मुकाबला होने वाला है उत्तर प्रदेश विजर्स के साथ। ये मुकाबला रांची में ही होगा। तो नेगी जी, एक इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो चुकी है हमारे सामने। दिल्ली की टीम सामना करेगी पंजाब का और रांची की टीम सामना करेगी यूपी का। दिल्ली की टीम ने सुनील अब तक अपने सारे मैचेस जीते सिवाय वो जो आज मैच हारे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो उनके कोच हैं देखिए बंसल, उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि अगर ये टीम हारी है तो उनका जो जिस तरह से जो उनका जो चढ़ाव था उसको नीचे उतारने में भी शायद ये जो हार है वो काम आएगी। एक बार फिर से वो फाइटिंग स्पिरिट उनकी पूरी टीम में डेवलप होगी, जो इस लेवल पे बहुत इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और AK बंसल इस पूरी लीग में अकेले भारतीय कोच हैं, बाकी चारों टीम्स के पास विदेशी कोच हैं। और भारतीय मीडिया ने इस बात को काफ़ी उछाला था कि अकेला विदेशी कोच बाकी चारों विदेशी कोचों पर भारी पड़ रहा है। खैर ये भी बहुत दूर की बात है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। फिलहाल तो हमारा ध्यान केंद्रित है इस मैच में, जहां पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी रांची की टीम एक ऐसी टीम के विरुद्ध खेल रही है जिसके पास खोने को कुछ नहीं। जुगराज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। जुगराज, हमारे पंजाब के सियाने अक्सर कहा करते हैं कि जिस शख्स के पास खोने को कुछ ना हो उससे सबको डरना चाहिए। तो आज आपको लगता है कि मुंबई की टीम अपनी सबसे खतरनाक हॉकी खेलेगी? सुनील, बिल्कुल। हालांकि इस मैच का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि रांची ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन पंजाबी में कहावत है कि मरिया आया सप जड़ा वो सब दे गल चटक जाता। सो ये मरा हुआ सांप है मुंबई की टीम, और कोशिश रहेगी रांची की कि आज ये उनके गले में ना अटके। जुगराज सिंह जितनी जबरदस्त, जितनी खतरनाक ट्रैक फ्लिक मारा करते थे, उतने खतरनाक जुगराजिज्म भी लगा रहे हैं आज कमेंट्री में। थैंक यू सुनील। और जुगराज, ट्रैक फ्लिक की अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे बेहतर शख्स हो नहीं सकता इस बात को बताने के लिए। संदीप सिंह जिस टीम में शामिल हो, रिक चार्ल्सवर्थ जिस टीम के कोच हो, संदीप ने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, लेकिन मुंबई की टीम का प्रदर्शन उसके हिसाब से बहुत ठीक रहा है। सुनील, बाकी डिपार्टमेंट्स जो थे जैसे उनकी फॉरवर्ड लाइन, उनकी डिफेंस, वो बहुत वीक रही है। हालांकि अगर शॉर्ट कॉर्नर्स की बात करें तो शायद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में अब तक मुंबई मैजिशियंस का शॉर्ट कॉर्नर। लेकिन शॉर्ट कॉर्नर अकेले से आपका जो आज की हॉकी में गुजारा नहीं हो सकता। आज आपको सभी डिपार्टमेंट्स में एज इक्वल काम करना पड़ेगा, जो कि मुंबई की टीम बाकी सब डिपार्टमेंट में फेल हुई, स्पेशली डिफेंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल खाए अब तक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने। तो यही कारण है आज मुंबई जो है वो खाली हाथ घर लौटेगी। और अपने मुंबई के डिफेंस की बात की, क्या लगता है कि संदीप सिंह जितने बढ़िया शॉट कॉर्नर लगाते हैं डिफेंस में, शायद कुछ ज़्यादा काम करने की, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी भी उनको? बिल्कुल, जिस तरह से शॉट कॉर्नर में उनकी चमक दमक है, उस तरह से डीप डिफेंस में उनकी चमक दमक नजर नहीं आई है। हालांकि बहुत ही वीक रहे हैं डिफेंस में। और यहाँ देखते हैं मुंबई की डिफेंस के ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है। रांची के खिलाड़ी पहुंचे हैं, गोलकीपर एकदम सामने लेटे, और इसी बीच अंपायर रघु ने मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर रांची को प्रदान कर दिया है। ये शॉट कॉर्नर मिला है यहाँ पे रांची की टीम को, पहला पेनल्टी कॉर्नर मैच का। देखना यह होगा कि आज
एशले जैक्सन गोल कर बच गई। ये देखिए किस तरह से जॉनी के पांव में बॉल यहाँ पे लगी है। फ्लोरेंस आइवर्स 2 बार ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। जुगराज, अगर आप टीम के कोच हैं यहाँ पर, क्या डायरेक्ट लेंगे या कोई वेरिएशन बनाएंगे? बिल्कुल सुनील, अगर हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रैक फ्लिकर है, एशले जैक्सन जैसे फ्लिकर हैं, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम डायरेक्ट फ्लिक नहीं लेंगे। डायरेक्ट फ्लिक ही लेनी चाहिए यहाँ पे रांची को, क्योंकि पहली दफा अगर आप डायरेक्ट फ्लिक लेते हैं तो आपको रश आउट पता चल जाता है, जो ओपोनेंट है उनका रश आउट क्या है। तो अब देखना ही होगा कि ब्रह्मास्त्र जो कि रांची के हैं, ब्रह्मास्त्र एशले जैक्सन कर पाते हैं कि नहीं गोल। एशले जैक्सन बाहर तैयार है, लेकिन किसी और ने प्रयास किया और बचा लिया गया। अंपायर ने कहा कि गेंद उठी हुई थी। बोस्को पेरेज ने आई थिंक ये प्रयास लिया था, एशले जैक्सन का प्रयास नहीं था ये। तो जो पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है उसमें रांची की टीम, पंजाबी में ही कहते हैं कि पंगड़े पाड़े, व्यर्थ ही गवा दिया। बिल्कुल सुनील, ये आप देख सकते हैं अच्छा पुश था, स्लैब शॉट मारने की कोशिश यहाँ पे की, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कोच की जो है ये क्लार्क की ये क्या रणनीति, क्योंकि उनके पास बेहतरीन ट्रैक फ्लिकर हैं, उनको यूज नहीं किया गया यहाँ पे। यही कारण है कि रांची गोल नहीं कर पाई। देखिए सुनील, आज का जो मैच है रांची इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि 6 मेन प्लेयर उनके आज मैदान में नहीं है। तो सीनियर खिलाड़ियों को रहते हैं, बढ़िया प्रयास और ये बेहतरीन पास यहाँ पे सतबीर सिंह के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। मानो सर झुका के चलने की आदत हो गई है मुंबई मैजिशियंस के जो प्लेयर हैं उनको। जुगराज, ये बड़ी ही एक हैरानीजनक बात है। हम शुरू से इसी बात की चर्चा करते आए हैं कि मुंबई मैजिशियंस के पास खोने को कुछ नहीं, शायद आज चढ़कर खेलेंगे, शायद सबसे कमाल की हॉकी खेलेंगे। लेकिन जो अब तक का प्रदर्शन देखा है नेगी जी आपने, तकरीबन 13 मिनट का खेल हो चुका है, स्कोर तालिका 0-0 से बराबर है, लेकिन मैदान में कौन सी टीम का पलड़ा भारी दिखेगा आपको? मुझे लगता है कि मुंबई की टीम जो है आज वो कुछ ठान के आई है। मैच की शुरुआत से ही जिस तरह से उन्होंने अटैक पर अटैक किए हैं और कर भी रही है, मुझे लगता है कि वो यकीनन गोल मारेगी। उनका बॉल पोजीशन भी अच्छा है। इनफैक्ट अभी सतबीर इस बॉल को ठीक तरीके से ट्रैप करते थे, उनके पास में चांस भी था गोल मारने का। एक अच्छे स्ट्राइकर की जरूरत होती है सुनील किसी भी टीम में जीतने के लिए। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है पहले क्वार्टर में से, और देखना ये होगा कि कौन सी टीम इस 0-0 के डेड लॉक को तोड़ेगी। जैसा हमने पहले बताया कि रांची पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है, पहला मुकाबला 2-1 से और दूसरा मुकाबला 3-1 से। तो जुगराज, इस प्रकार से कुछ ग्रज रहती है टीम्स के मन में कि इन्होंने हमें 2 मुकाबले हराए हैं तो हमें बदला लेना है, या मुंबई के लिए सफर खत्म तो सब कुछ खत्म? सुनील, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा मुंबई टीम के लिए। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। तो मुंबई की टीम ने शायद ये ठान लिया है कि वो समुंदर बनना ही नहीं चाहते हैं, वो दरिया ही रहना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर मैच की बात करें तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक मैच आप अगर जीत जाएंगे तो आज आप खुशी खुशी घर जा सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी लय नजर नहीं आई है मुंबई मैजिशियंस की टीम के बीच में। और विडंबना की बात यह है जुगराज कि समंदर किनारे बसे मुंबई की टीम समंदर नहीं बन पा रही है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है आज मुंबई मैजिशियंस के लिए, क्योंकि पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में शायद उन्होंने एक ही मैच जीता है अब तक। हालांकि अच्छी टीम थी, अच्छे नाम थे उनके पास, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि नाम बिल्कुल नहीं खेलते हैं। आजकल की हॉकी में नामों का टाइम गया है। आज तो जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर। और आजकल की बात अगर कुछ सदियों पुरानी बात भी करें तो गालिब ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। चलिए, इस मैच में रखा है बहुत सारा प्राइड, खासतौर पर मुंबई के लिए और रांची के लिए अपने मोमेंटम की बात है, क्योंकि रांची की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उनके कोच की नीति ये रही है कि आज कुल 20 खिलाड़ी भी उनके पास नहीं है। वैसे हीरो हॉकी इंडिया लीग के नियमों के मुताबिक एक कोच
कुल मिलाकर 20 खिलाड़ी मैदान में उतार सकता है। रांची के कोच ग्रेग क्लार्क ने सिर्फ 17 खिलाड़ी उतारे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी पंजाब से खेलने के बाद जलंधर होते हुए दिल्ली गए और दिल्ली होते हुए पहले ही रांची पहुंच चुके हैं। जी, हमारे सूत्रों ने हमें खबर दी है। और दूसरी तरफ मुंबई की टीम अपने पूरे दल बल के साथ खेल रही है। मुंबई जो कि सुनील अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए भी अगर मैच नहीं जीतेगी तो भाई ये तो वही कहना होगा कि ये वो मगरमच्छ है जिसके दांत खट्टे हो चुके हैं शायद, जो पानी में भी उतना ही खतरनाक नहीं है और बाहर तो पानी के बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये वेजिटेरियन मगरमच्छ है, शिकार नहीं करता। ये शायद पहला मगरमच्छ होगा जो खुद शिकार हो रहा है अपने घर पे भी और बाहर भी। चलिए, मगरमच्छों का ही अटैक है। ये रिवर्स हैंड लगाया गया और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। ये एक अर्ध सफलता हासिल कर ली है मुंबई ने। और इसमें अब देखना ये होगा सुनील कि आज संदीप सिंह 12वां गोल कर पाते हैं कि नहीं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला गोल आखिरी लीग मैच में कर पाते हैं। पेनल्टी कॉर्नर मिला है, यहाँ पे दर्शक खुश हैं, बहुत सारी भीड़ यहाँ पे हुई है। देखिए भारतीय तिरंगा और ये देखिए चिंगलिंग साना का अच्छा प्रयास, लेकिन तिरकी जिस तरह से आए टोपो सॉरी ओके, ये देखिए बॉल स्टिक पे लगी जो सीधी पाँव में लगी है सुमित को। अमित रोहित दास थे माफ करना। कॉर्टिस जो कि बेहतरीन गोलकीपर है दुनिया के। अब देखते हैं संदीप सिंह उनको चकमा दे पाते हैं कि नहीं। हालांकि संदीप सिंह ने काफी बार जो है वो गोल दागे हैं पेनल्टी कॉर्नर से, लेकिन देखना ये होगा कि इस शॉट कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। ग्लेन टर्नर यहाँ पे बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अब तक 2 गोल किए हैं टूर्नामेंट में इन्होंने। चलिए, सारी निगाहें संदीप सिंह के ऊपर है। पहला क्वार्टर खत्म हो चुका है, जिसका अर्थ यह है कि मुंबई के सारे खिलाड़ी गोलकीपर को छोड़कर डी के किनारे पर आ सकते हैं। संदीप सिंह का प्रयास और कॉर्टिस ने बचा लिया है। पहले क्वार्टर के अंत में मुंबई की टीम भी इस पेनल्टी कॉर्नर को नहीं बचा पाई है नेवी टीम। ये संदीप सिंह का कोच बहुत ज्यादा एंगलर नहीं था और गोलकीपर को कोई तकलीफ भी नहीं उसे रोकने के लिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले क्वार्टर का खेल लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अंतिम लीग मुकाबले में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। ये मैच नंबर 30 है। हम लीग स्टेज को तकरीबन पार कर चुके हैं और इस मैच के बाद हम तैयार होंगे सेमीफाइनल्स, फाइनल्स और थर्ड प्लेस मैच के लिए। ये जो नर्तकियां हैं जिस टीम की सपोर्ट कर रही हैं वो टीम सेमीफाइनल में नजर नहीं आएगी और उन्हीं की टीम को पिछले ब्रेक से तुरंत पहले एक मौका मिला था पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करने के लिए, लेकिन उस पेनल्टी कॉर्नर पर मुंबई मैजिशियंस और उससे पहले रांची राइनोज भी अपने पेनल्टी कॉर्नर को नहीं भुना पाए हैं। और इसी बीच मुंबई की टीम ने ही दूसरे क्वार्टर के खेल की शुरुआत की है। मेरे साथ मीर रंजन नेगी साहब और जुगराज सिंह लगातार बने हुए हैं। जुगराज, संदीप सिंह के पेनल्टी कॉर्नर के बारे में बात करने के लिए आपसे बेहतर शख्स भारत में कोई हो नहीं सकता। उस ड्रैग फ्लिक में क्या कमी रही थी? सुनील, जिस तरह से संदीप सिंह ने वो ड्रैग फ्लिक लिया था, हालांकि पावर थी लेकिन बॉल जो थी वो एंगुलर नहीं थी, बिल्कुल बीचों बीच गोलकीपर के सीधी मानो सोच के मारी हो कि भाई मैं आपके दाहिने टांग पे मार रहा हूं। तो ऐसे गोल नहीं मिलेगा आपको जब तक आपकी बॉल जो है वो एंगुलर नहीं होगी। आपको एंटीसिपेट करना होगा, आपको उस बॉल को बिल्कुल सोच समझ के आपको पहले से अपना मन बना के जाना होगा कि मैं उस बॉल को राइट डाउन मारूंगा या राइट टॉप मारूंगा, जो कि संदीप सिंह वहां पे थोड़े से शेकी नजर आए मुझे, क्योंकि जब आप 2 राय मन में लेके चलते हैं तो हमेशा ऐसी गलतियां होती हैं। और मैंने ड्रैग फ्लिकर के बारे में बात की, अब गोलकीपर के बारे में बात करने का समय है। नेगी जी, गोलकीपर क्या अंदाजा लगा सकता है कि गेंद कितनी ऊंची आएगी या किस दिशा में आएगी? बहुत मुश्किल है सुनील, ये बहुत तेजी से बॉल आती है, जितनी जोर से आप हिट मारते हैं उससे तेजी से बॉल जो है वो ड्रैग फ्लिक होती है। जैसे कि हम एक गुफन होती है ना, जैसे कि घुमा के जो फेंकते हैं गुलेल, उस तरह का जो ये पावर इसके अंदर जनरेट करते हैं। एक डिफरेंट टेक्निक है बेसिकली, ये स्कूप नहीं है, ये कुछ अलग है। वापस अगर ड्रैग फ्लिक की बात करें जुगराज, कई बार संदीप सिंह या दूसरे हमने फ्लिकर्स को देखा है कि बिल्कुल जमीनी ड्रैग फ्लिक लगाते हैं जो कि लकड़ी के फट्टे को टकराती है और कई बार नेट की बिल्कुल ऊंचाई पर। तो दोनों में कौन सी बेहतर है और फ्लिकर कब यहां मौका मिल सकता है रांची को? हमारी सारी चर्चा के बीच में रांची का एक तेज तरार अटैक हुआ था जिसे श्रीजेश ने नेस्तनाबूद किया है। यहाँ श्रीजेश की तारीफ करनी होगी सुनील, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बॉल को रोका है
ये काबिल तारीफ है और ये अपनी टीम के लिए लाइव हो सकती है। देखिए अच्छा अब यहाँ पे वन टच पास था, हालांकि अगर श्रीजेश सामने नहीं आते तो प्रदीप वहाँ पे मौजूद थे, खतरा बन सकता था यहाँ पे मुंबई मजिशियंस के लिए। लेकिन तारीफ के काबिल है यहाँ पे श्रीजेश, हालांकि सबसे ज्यादा गोल उन्होंने खाए हैं पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में, लेकिन इस मैच का ये बेहतरीन बचाव। तो जुगराज वापिस उसी बात पर आते हैं कि रैक फ्लिकर कब ये डिसाइड करता है कि उसे जमीनी रैक फ्लिक लेनी है या हवाई रैक फ्लिक लेनी है, और कौन सी बेहतर है? सुनील ये डिपेंड करता है, आप सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि सब गोलकीपर्स की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है और आपको पता होना चाहिए आप जिस भी गोलकीपर के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो उस गोलकीपर की वीकनेस क्या है। वो ग्राउंडेड बॉल लेने में थोड़ा वीक है या नेट बॉल ज़्यादा अच्छे सेव कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको जो है वो अपना ट्रैक फ्लिक लेना होता है। तो शायद संदीप सिंह को इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा वर्कआउट करना होगा कि वो किस गोलकीपर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। यानी कि होमवर्क सिर्फ स्कूल में ही आपका खत्म नहीं हुआ, हॉकी के मैदान में आकर होमवर्क और बढ़ जाएगा। सुनील यहाँ पे तो होमवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में तो शायद मास्टर आपको एक दफ़ा कान पकड़ के बोल देगा और दोबारा आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन यहाँ दोबारा मौका कोई नहीं देने वाला आपको। यहाँ पर मौका क्या मुंबई मैजिशियंस को मिलता है? जी हाँ, पेनल्टी कॉर्नर मिला तो दरबार लगा हुआ है, एक और मौका मिला मुंबई को। मुंबई के हमलों में एक दूसरा हमला, बॉल चिंगलिंगसाना के पास आई थी और उन्होंने अपने डिफेंडर के पैर में डाल के इसको पेनल्टी कॉर्नर को बनाया, जैसे खाना बनाते हैं बिल्कुल वैसे पेनल्टी कॉर्नर बनाया। चलिए हम तैयार हैं डाबर मुंबई मैजिशियंस के दूसरे पेनल्टी कॉर्नर के लिए, और एक बार फिर से फ्लिकर सिंह, जिन्हें इनके दोस्त प्यार से कहते हैं, संदीप सिंह तैयार होंगे। सरवनजीत पुश करने के लिए तैयार है, अच्छा पुश, लेकिन गोलकीपर ने यह ठान लिया है कि संदीप सिंह आज हम आपकी एक नहीं चलने देंगे। यहाँ पे संदीप सिंह हालांकि अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे वहाँ पे, क्योंकि शायद सर पकड़ने से पहले अगर संदीप सिंह सोचे तो उनके लिए बेहतर होगा और टीम के लिए भी, क्योंकि आपको पता है पहली बार भी आपने नीचे फ्लिक किया था, दूसरी बार फिर आप नीचे फ्लिक कर रहे हो, ये वेरिएशन आपको यूज करनी होगी अगर आपको गोल निकालना है। इसी बीच पेनल्टी कॉर्नर्स की बात करें, मुंबई मैजिशियंस को 2 मिले, अब तक कोई फायदा नहीं उठा पाए, वही रांची राइनोज को 1 मिला है जिसका फायदा वो नहीं उठा पाए। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर यूज करने की कोशिश की थी, हालांकि गोलकीपर वहां पे मौजूद थे। अच्छा बचाव कोर्टिस द्वारा। नेगी जी हमारे साथ हैं जो खुद एक गोलकीपर है। नेगी जी आपका क्या कहना है, किस तरह से कोर्टिस ने ये बॉल को जज किया? जहाँ तक मुझे लगता है ये बॉल जो है ये गोल पोस्ट से टकरा के बाहर गई है, बीच में किसी की स्टिक लगी और गोल पोस्ट के ऊपर बॉल लगी और उसके बाद में ये जो है ये बॉल बाहर गई, इसीलिए संदीप सिंह जो है थोड़े सा अनलकी भी रहे। लक एंड प्लक, ये 2 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। और इसी बीच अंपायर रघु प्रसाद ने चेतावनी जारी की है किसी खिलाड़ी के लिए, और हमें यह भी सूचना मिली है कि सरवनजीत को हरा कार्ड मिल चुका है। जी हां, सरवनजीत सिंह अब कम से कम 2 मिनट के लिए बाहर रहेंगे और उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए रांची की टीम डी के अंदर खलबली मचाना शुरू कर चुकी है। और इस बार फिर डिफ्लेक्शन संभव नहीं हो पाई, एक बार फिर से मौका गंवाया रांची राइनोज ने। सुनील यहाँ मैं आपको बता दूं कि सरवनजीत नहीं, सतबीर सिंह है जो कि युवा खिलाड़ी हैं। ये देखिए अच्छा प्रयास यहाँ पे, हालांकि टैकल किया था संदीप सिंह ने, लेकिन एशले जैक्सन जिन्होंने सेकंड पोस्ट यूज करने की कोशिश की थी, प्रदीप वहां पे लगातार बने हुए थे, लेकिन ये दूसरा मौका है जब प्रदीप ने ऐसा बॉल मिस किया है। इसी बीच गोलकीपर श्रीजेश चोटिल हुए यहाँ पे, राइट एल्बो के ऊपर बॉल लगी है उनके। ये एक नेगी जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो गोलकीपर की जो बाजू रहती है ये खाली होती है हमेशा, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं पहनते हैं बहुत सारे गोलकीपर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जुगराज, गोलकीपर तो वो अच्छा खेलता है जो थोड़ा सा फ्री होके खेलता है। अगर है ना बहुत सारे बंधनों में बंधा रहे, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लगी रहे, एक एस्ट्रोनॉट की तरह रहे, तो उतना ही उसका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होता है। गोलकीपर श्रीजेश को थोड़ी सी चोट लगी हुई है।
ऋषिकेश भारत के कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ये देखें कैसे चोट लगी। ये एक अच्छा प्रयास यहाँ पे फॉरवर्ड लाइन द्वारा था, लेकिन बचाव फिर से श्रीजेश ने किया। हालांकि चोटिल हो गए लेकिन बेहतरीन बचाव। फिजियो श्रीकांत वहाँ पे हैं जो कि इंडियन टीम के भी फिजियो हैं, और श्रीजेश की सिलेक्शन इंडियन टीम में फिर से की गई है क्योंकि श्रीजेश अभी जो वर्ल्ड हॉकी लीग होने वाली है उसमें खेलेंगे भारत के लिए, और अजलन शाह में भी श्रीजेश जा रहे हैं। तो श्रीजेश जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण गोलकीपर हैं और भारतीय टीम के लिए काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं। और आपने वर्ल्ड हॉकी लीग की बात की जुगराज, उसमें मनदीप सिंह को भी जगह मिली है। और ये भाई साहब अब ईरानी ट्रॉफी का मैच देखने के बाद हॉकी मैच देखने भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका। तो यहाँ से पता चलता है सुनील कि हॉकी जो है वो नस नस में बसी है लोगों के यहाँ। बात कर रहे थे वर्ल्ड हॉकी लीग की, जिसमें मनदीप सिंह जो रांची राइनोस के खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता की, जिनको खोज माना जा रहा है, उनको पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। फिलहाल उन्हीं की टीम का अटैक है। पुनजीत ने गेंद को अंदर सरकाया है और गेंद बाहर जाएगी। जुगराज, आपसे जानना चाहता हूं, आप अभी भी माशाल्लाह काफी युवा है, जब चाहे स्टिक पकड़कर मैदान में जा सकते हैं। जितने भी युवा खिलाड़ी निकले हैं, मनदीप सिंह हो या मनप्रीत सिंह हो या और अनेक खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में काफी बेहतर खेले हैं, क्या बढ़िया तरीका है उनके टैलेंट को सही मायने में यूटिलाइज करने का? सुनील, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो भारतीय हॉकी टीम में सिलेक्ट हुए हैं। इस बीच अच्छा प्रयास, लेकिन गलती की इस बार। हालांकि एशले जैक्सन वहां पे अच्छा बॉल उन्होंने फीड किया था, बहुत ही बेहतरीन ट्राई थी, लेकिन ये देखिए अच्छा पास। संदीप सिंह बिल्कुल ऑफ कलर, वहां पे बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग नहीं थी। हालांकि बॉल जो है वो गोल पोस्ट के ऊपर से बाहर गई। तो सुनील, हम बात कर रहे थे जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए अपने आप को साबित करने का। और सबसे बड़ी बात जो है, कोच को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये खिलाड़ी जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ए टीम में या सेकंड टीम में खिलाएं, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले फॉरेन के खिलाड़ियों के साथ खेलने का, उनकी टीमों के साथ खेलने का, उनकी रणनीति उनको पता चले, क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। कम से कम 30 से 40 मैच उनको जूनियर टीम के साथ या भारतीय ए टीम के साथ खिलाएंगे। आप ये देखते हैं इस बीच संदीप सिंह ने जो प्रयास किया था, अब तक के हाईएस्ट स्कोरर हैं। 8 पेनल्टी कॉर्नर जो हैं उन्होंने लिए, लेकिन इसमें से बिल्कुल मिस किए यहाँ पे 3 पेनल्टी कॉर्नर। जी बिल्कुल, पिछले 3 मुकाबलों में 8 पेनल्टी कॉर्नर मिस कर चुके हैं संदीप सिंह। तो नेगी जी 11 बार इन्होंने हिट भी किया है, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में 8 बार मिस भी कर चुके हैं। तो ये क्या टीम के खराब प्रदर्शन के कारण बना इनके ऊपर दबाव है या कोई और कारण मानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सुनील, गोलकीपर का जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो भी जवाबदार है इस बात का कि संदीप सिंह इतने सफल नहीं हुए। इस पूरे टूर्नामेंट में गोलकीपर्स ने बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दिया है। देखते हैं रांची की टीम क्या कदम उठा पाएगी। यहाँ से संदीप सिंह इस बार गेंद को लेकर डी के बाहर आने में कामयाब हुए और उनकी टीम का पलटवार शुरू हो चुका है। जेसन विल्सन ने गेंद को आगे सरकाया है, जहां ग्लेन टर्नर गेंद के साथ आगे नहीं जा पाए। ये देखें रिप्ले में, थोड़े से स्लिप हो गए थे और बॉल को संदीप ने अपने कब्जे में किया और वो पूरा अटैक भी कर रहे हैं साथ में। सुनील, जितने गोलकीपर हैं इनकी हाइट बहुत ऊपर है और जिसकी वजह से उन्हें ऊपर की बॉल को रोकने के लिए आसानी होती है। इस वजह से संदीप सिंह नीचे की तरफ मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुगराज जिस तरीके से गोलकीपर को धोखा सा दे देते, जिस तरीके से फेक करते थे, वो वेरिएशंस जो हैं वो संदीप की ड्राइव फ्लिक में अभी फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नेगी जी, हमने आपके अंडर भी खेला है, आप हमारे कोच थे उस समय। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि गोलकीपर भी होमवर्क करके आते हैं घर से, उनको भी पता होता है कि आज वो किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने मन ही मन में 2-4 ऐसी वेरिएशन जरूर रखनी होगी जिससे आप गोलकीपर को जो है वो चकमा दे पाए। और मैं जब खेलता था, मेरा एक प्लस पॉइंट था, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया था कि आपके पास आपके 2 ऐसे फेवरेट मूव्स होने चाहिए जो आप कभी भी यूज़ कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ आपको वेरिएशंस जो हैं वो ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि वेरिएशंस हैं जो आपको गोलकीपर को बीट करने में आपकी मदद करती है हमेशा। जुगराज, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने तकरीबन 100 के आसपास गोल किए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में। कोई खास मैच या खास गोल याद है जिसने आपके मन में अमिट छाप छोड़ी हो? बिल्कुल सुनील, मेरा पहला सीनियर टूर था वो अजलन शाह 2001 में। हम लोग खेलने गए थे मलेशिया में और पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग खेल रहे थे, और पाकिस्तान में उस समय जो नामी खिलाड़ी थे, शाहबाज, उस्मान,
अहमद आलम जो कि बेहतरीन गोलकीपर रहे हैं दुनिया के। और इसी बीच जुगराज मुंबई मैजिशियंस डी के अंदर जाने में कामयाब हुए हैं, हालांकि कोई धमाचौकड़ी उत्पन्न नहीं की उन्होंने डी के अंदर। इस अटैक के बाद आपके उस मैच पर वापस आएंगे। तकरीबन 10 मिनट का खेल दूसरे क्वार्टर में हो चुका है। 0-0 का डेडलॉक अभी तक टूटा नहीं है। तो वो मैच मुझे आज भी याद है सुनील, मैं उस मैच में जब खेल रहा था तो अहमद आलम जो कि बेहतरीन गोलकीपर थे वो मेरे सामने थे और शॉट कॉर्नर जैसे हमें मिला तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस समय मात्र 18 साल की उम्र में था और सबसे पहला गोल मेरा सीनियर्स में जो था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था और मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुझे राइट मारना है, लेफ्ट मारना है। मेरे जहन में एक ही बात थी कि भाई गोलकीपर जो है वो हमेशा अपनी टांगों के बारे में कभी नहीं सोचता, और मैंने भगवान का नाम लेके सीधा पुश किया जो कि बीचों बीच गोलकीपर की टांगों के बीच में से सीधा बॉल जो है वो बोर्ड पे जा टकराया। वो लाइफ का पहला गोल था। उसके बाद तो मानो मतलब पाकिस्तान के ऊपर तो गोलों की झड़ी लगी रही, क्योंकि उस गोलकीपर के ऊपर मेंटली इतना प्रेशर हो गया कि भाई सबसे गंदा गोल हम मानते हैं हॉकी में, सब लोग मानते हैं कि टांगों के बीच में से। तो कई बार आपको जो है ऐसी चीजें सोचनी पड़ती हैं। इसे कई लोग कहा करते हैं इंडिया गेट बनाना, जिस प्रकार से इंडिया गेट के बीच में से कई बार गाड़ियां गुजर जाया करती हैं। और अगर गोलकीपर के बारे में बात करें नेगी जी, क्या वाकई में गोलकीपर टांगों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है? टांगों के बारे में गोल खाना, टांगों के अंदर से गोल खाना जो है वो सबसे खराब माना जाता है। तो कहीं ना कहीं गोलकीपर के मन में ये रहता है कि मेरे टांग में से बॉल नहीं हो जाए। तो जब आप इस किस्म से नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आती है तो आप यकीन मानिएगा हमेशा आप टांग के बीच में से ही गोल खाएंगे। चलिए देखते हैं रांची की टीम गोल खाएगी या नहीं। मुंबई की टीम को तलाश है एक अदद गोल की, डी के अंदर जाने में कामयाबी मिली है। दबाव रहने वाला है मुंबई की टीम का। ये सतवीर सिंह हैं जिनको थोड़ी देर पहले ग्रीन कार्ड मिला था लेकिन मैदान में वापस आ चुके हैं। सतवीर सिंह पंजाब के गुरदासपुर से आते हैं और सरदार सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। सरदार सिंह दिल्ली टीम के कप्तान हैं इस प्रतियोगिता में और उनकी टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, जहां उनका मुकाबला पंजाब से ही होने वाला है, जेपी पंजाब वॉरियर से। दोनों सेमीफाइनल, फाइनल और थर्ड प्लेस मैच क्रमशः 9 और 10 फरवरी को रांची में खेले जाने हैं। और जहां तक हमारी सूचना है नेगी जी, इन चारों मैचेस की टिकट पहले ही बिक चुकी हैं और जो वहां के आयोजक हैं उन्होंने हॉकी स्टेडियम के पास एक फुटबॉल स्टेडियम है, वहां पर बड़ी स्क्रीन लगा दी है ताकि जो अतिरिक्त क्राउड है उनको वहां बिठाकर स्क्रीन पर दिखाया जाए। तो ये आलम है हीरो हॉकी इंडिया लीग का। हाँ सुनील, बहुत ज़बरदस्त माहौल जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। कभी कभी लगता था मुझे कि हॉकी जो है उसकी शाम हो गई है, लेकिन जब से हीरो हॉकी इंडिया लीग चालू हुई तो ऐसा लगा जैसे ये बादल जो है ये छटते जा रहे हैं, फिर से एक नई धूप चालू हुई और एक चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार कि मुझे लगने लगा कि वाकई अब हॉकी के जो अच्छे दिन हैं वो वापस आने वाले हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। देखते हैं मुंबई की टीम अंतिम मैच में कुछ सुख प्राप्त कर पाएगी या नहीं, एक जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। पिछले 11 मुकाबलों में इस टीम ने मात्र एक ही मैच जीता है। लेकिन चलिए इस बार अगर बुरा प्रदर्शन किया है तो हो सकता है कि अगले संस्करण में थोड़ा बेहतर प्रयास करें। आज इनके कोच हमारे साथ मौजूद थे मैच से पहले और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया नेगी जी कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं किए। खैर इनके 4 खिलाड़ियों को वापस जाना पड़ा, उनकी रिप्लेसमेंट थोड़ी देर से आई, लेकिन कम से कम ईमानदारी से इस बात को माना है कि हमारी जो टीम सिलेक्शन थी वो उतनी बढ़िया नहीं रही है। हाँ सुनील, थोड़ा सा टाइम जो था वो कोचेस के लिए भी कम था, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी टाइम कम था, तो उसमें ही इन्होंने जितना प्रिपेयर किया, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत जो है ये मेरे ख्याल से अगले साल और उसके आने वाले सालों में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के रूप में, जिसका पूरा लोग सारी दुनिया इंतज़ार करेगी, इस तरह से एक टूर्नामेंट जो है ये उसका रूप इसने धारण कर लिया है। और शुरुआत कहां से हुई है? 5.5 करोड़ रुपयों से। जी हाँ, 5 करोड़ 40 लाख रुपए दांव पर लगे हुए हैं। जीतने वाली टीम 2.5 करोड़ रुपए लेकर घर जाएगी। नंबर 2 पर रहने वाली टीम 1.25 करोड़ रुपए, और जो टीम नंबर 3 पर रहेगी उसे 75 लाख रुपए मिलेंगे। और ढेर सारे इंडिविजुअल पुरस्कार भी हैं, जैसे अपकमिंग खिलाड़ी को 20 लाख रुपए मिलेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को
25 लाख रुपए मिलेंगे। तो जितने भी 18-19 साल के खिलाड़ी हैं, जैसे मनदीप सिंह हो या मनप्रीत सिंह हो या वीरेंद्र लाकड़ा हो, इनमें से कोई ना कोई एक खिलाड़ी मोटा मोटा लाखपति बनने वाला है। बिल्कुल सुनील, जैसा मैंने पहले भी कहा, चेक दे हो रहा है, कितना पैसा हॉकी में आ रहा है। इट इज वंडरफुल फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। मुंबई के लिए अच्छी फीलिंग निकलती है या नहीं? समय थोड़ा सा ही बाकी है अब दूसरे क्वार्टर में, 2 मिनट से कम का समय। 2 पेनल्टी कॉर्नर्स ये पहले गवा चुके हैं, इस बार तो वो भी नहीं मिला। न पेनल्टी कॉर्नर न फील्ड गोल, इसे कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिला, माया मिली न राम। माया तो खैर मिलेगी नहीं, आप सेमीफाइनल में खेल नहीं सकते। जो सेमीफाइनल में खेलेंगे उन्हें ही लाखों और करोड़ों की माया मिलने वाली है। सुनील, अगर हम पांचों टीमों की तरफ देखें तो पांचों टीमें जो थी वो इक्वली बैलेंस थी। मुंबई की टीम खराब नहीं थी। अगर आप देखें शुरू के मौके तो उन्होंने हार भी रहे तो 1 गोल से, मैक्सिमम 2 गोल से, और उन्होंने भी दूसरी टीमों के खिलाफ अच्छे आक्रमण किए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक स्ट्राइकर, एक ऐसा आदमी चाहिए था उनकी टीम में जो गोल पे गोल दागता। उनके पास में सिर्फ एक AK-47 थी संदीप सिंह के रूप में, जो चली तो चली। और पिछले 3 मैचेस से इस बंदूक में भी थोड़ा सा जंग ही दिखाई दिया हमें। 8 गोल संदीप ने मिस किए हैं, और अक्सर कहावत ये भी है नेगी जी कि अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता। एक तोप, एक AK-47 पूरी जंग को नहीं जीत सकती। बाकी तोपें ठुस रही हैं मुंबई के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े नामी खिलाड़ी और उनके साथ में इतने ही महान कोच। इनफैक्ट श्रीजेश का प्रदर्शन भी लास्ट 2-3 गेम्स में से देख रहे हैं तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अपने दूसरे गोलकीपर्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए वो भी काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। और अब खेल दिखाने के लिए बचे हुए 2 क्वार्टर्स का इंतजार शायद करना पड़े। ये अंतिम मौका हो सकता है। डी के अंदर गेंद पहुंच गई थी और कुछ अंतिम ही सेकंड्स बाकी हैं अब दूसरे क्वार्टर में। पहले 2 क्वार्टर्स तकरीबन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी टीम अभी तक पहला गोल स्कोर नहीं कर पाई है। गोलविहीन अभी तक ये मैच चल रहा है, लेकिन दर्शकों को पूरा आनंद आ रहा है और हमें भी देखना ये रोचक होगा कि कौन सी टीम इस मैच का पहला गोल करने वाली है। रांची राइनोज जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में मुंबई को हराया था, या मुंबई मैजिशियंस जिनको अपनी दूसरी जीत की तलाश है। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर हम पुनः हाजिर होंगे। हीरो हॉकी इंडिया लीग के अंतिम लीग मुकाबले में आपका स्वागत है। लेकिन हम तैयार हैं पहले सेमीफाइनल के लिए, जो 9 फरवरी को खेला जाएगा उत्तर प्रदेश विजर्ड्स और मेजबान रांची राइनोज के विरुद्ध। ये मुकाबला शनिवार को शाम 4:30 बजे शुरू होगा। नजर डालते हैं मौजूदा मैच के मुख्य अंशों पर। दोनों तरफ से आक्रमण शुरू से ही होते रहे। रांची का अटैक एक बहुत अच्छा मौका था प्रभदीप के पास में, लेकिन टोटल मिस हुए। ये देखिए दूसरे एंगल से थोड़ा सा डाइव भी मारते तो उसको कनेक्ट कर सकते थे आराम से। जिस तरीके से बॉल उठी, पहला शॉट जो है वो बोर्ड जो होता है पीछे का, उसके यहाँ संदीप सिंह की पुश जो है ये बाहर चली गई। एक और मौका था, बहुत अच्छा मौका था। ये देखिए पोल से टकरा के गई है। ये मैली में बॉल मिली एशली जैक्सन को, उन्होंने भी बाहर मारा और वहां पर अगेन प्रभदीप थे, लेकिन उनसे भी बॉल मिस हुई। नजर डालते हैं मैच के अब तक के आंकड़ों पर। स्कोर तालिका 0-0 पर है। पोजेशन में तकरीबन बराबरी है। सर्कल पेनिट्रेशन मुंबई मैजिशियंस की थोड़ी सी ज्यादा, शॉट्स भी हल्के से ज्यादा, और पेनल्टी कॉर्नर्स मुंबई मैजिशियंस को 2 जबकि रांची राइनोज को 1 मिला है। कोई भी टीम इन्हें भुना नहीं पाई है। आइए हम चलते हैं सिमरन कौर के पास। Hello, it's me again on Hero Hockey India League 2013 और मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मोहित बर्मन, जो कि है मैजिशियंस के ओनर, एंड रागेश्वरी, who is looking so gorgeous today. Thank you, you too.
Okay, so Rageshwari, are you watching the matches? I'm absolutely loving it. I think it's such a wonderful initiative by Mr. Berman. And of course, we're huge fans of the Dabur Mumbai Magicians team. So we've been screaming, we have no voices left. Huge fans, I'm sure. Mohit, the turnout is just amazing. आपकी टीम को support करने कितने सारे लोग आते हैं? Well, it's getting better. In the beginning, it was a bit weak, but I think the whole league is picking up, and it's going to get better and better next year. I am definitely sure. I mean, whenever I come to Bombay, the turnout is just so awesome. Who is your favorite player from Mumbai? Well, Sandeep Singh for sure, for sure. It's wonderful to watch all the players, of course. But of course, luck ने उनका साथ दिया और वो बहुत मेहनत करते हैं. You can just see that he's absolutely giving his best shot always. Rageshwari, I have a request. Can you just sing one line for the Mumbai Magicians? Oh, you know, when we're talking about never giving up, that's what Mumbai is all about, and I feel that that's what our team, Mumbai Magicians, is also all about. So I would say, Zamana mana, waka waka, Zamana mana zangaleba. It's time for Mumbai. Zamana mana, waka waka, Zamana mana zangaleba. It's time for Mumbai. Thank you so much, Rageshwari. Thank you, Mohit. Okay, अभी चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक पर. वेलकम बैक टू हीरो हॉकी इंडिया लीग 2013. मेरे साथ, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ ही देर पहले राकेश्वरी एंड शी इज स्टिल हियर विद मी. एंड मेरे साथ है जुगराज सिंह, जो कि मुझे बताएंगे कि अभी तक जो मैच हुआ है, कैसा लग रहा है मैच? I mean, अभी तक का हाफ टाइम हो चुका है. सिमरन, अभी तक अगर हम हाफ टाइम की बात करें, बहुत ही अच्छा मैच हुआ है. काफी दोनों टीमों ने बहुत सारे अटैक्स किए एक दूसरे के ऊपर. और डिफेंस की बात करें तो दोनों ही टीमों ने बहुत बढ़िया डिफेंस किए यहाँ पे. गोलकीपर्स दोनों टीमों के बेटर थे आज, क्योंकि श्रीजेश की और कॉटेस की अगर बात करें, दोनों ने कम से कम 5-5, 6-6 अच्छे सेव किए हैं. वहीं अगर डीप डिफेंडर्स की बात करें, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है. और कॉम्बिनेशन, आज दोनों ही टीमों में बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिला. अभी कुछ ही देर पहले मुझे रागेश्वरी बता रही थी उनके फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हॉकी प्लेयर के बारे में. It is Dhanraj Pillai. I absolutely love him, and I want to tell everybody कि hockey इतनी ज़बरदस्त game है to watch. You know, and we've been such a cricket-obsessed nation. It's time for hockey. What do you think about Hero Hockey India League? Like, what are your views? Brilliant initiative. जैसा मैं उनसे भी कह रही थी कि इतनी ज़बरदस्त गेम है. To, you know, I've always seen my father, वो hockey player थे अपने college में. My brother's a wonderful hockey player as well. It's a very exhausting game. It's a very tough game. I'm sure you're having good fun here. Absolutely. Having a great time. It's exhausting, but it's also very, very, very entertaining. I mean, I'm having a blast. चलिए देखते हैं हाफ टाइम के बाद मैच कौन सा रुख लेता है. चलते हैं अपने कमेंटेटर्स के पास. धन्यवाद सिमरन. हम तैयार हैं इस मैच के अंतिम 2 क्वार्टर्स के खेल के लिए. इन अंतिम 2 क्वार्टर्स के लिए दोनों टीम्स की जो आक्रमण करने की दिशा है वो बदल दी जाती है. डाबर मुंबई मैजिशियंस अपनी रेड एंड व्हाइट पोशाक में हमारे दाएं से बाएं आक्रमण कर रही है, जबकि अपनी लाल और पीले रंग की पोशाक में रांची राइनोज मेहमान टीम हमारे बाएं से दाएं आक्रमण करेगी. पहले 35 मिनट्स के खेल में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है. हालांकि जैसा हमने देखा कि दोनों टीम्स ने कम से कम 7-7, 8-8 बार दूसरी टीम की डी को पेनिट्रेट करने में सफलता हासिल की थी.